پہلے آپ کو بتایا ہے کہ محکمہ ہائی وے کے سرکاری کانٹریکٹر سڑکوں کو تعمیر نو کے کاموں کی تکمیل کے لیے مقررہ وقت پر مکمل نہ کر سکے۔ سرکاری کانٹریکٹرز مزید وقت مانگنے لگے۔ جگت پورہ سے مسجد چوک 131 جے بی ڈسٹرکٹ جڑاوالا میں سڑک کی تعمیر و مرمت کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ جڑاوالا میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام سست روی کا شکار ہے۔ ایس سی ہائی وے نے چیف انجینئر ہائی وے سے کانٹریکٹرز کو مزید وقت دینے کی استدعا کر دی۔ آپ کو بتاتے چلتے ہیں محکمہ ہائی وے کے سرکاری کانٹریکٹر سڑکوں کو تعمیر نو کے کاموں کی تکمیل کے لیے مقررہ وقت پر مکمل نہ کر سکے۔ سرکاری کانٹریکٹرز مزید وقت مانگنے لگے۔ جگت پورہ سے مسجد چوک 131 جیم بے ڈسٹرکٹ جڑاوالا میں سڑک کی تعمیر و مرمت کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ جڑاوالا میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام سست روی کا شکار۔ ایس ای ہائی وے نے چیف انجینئر ہائی وے سے کانٹریکٹرز کو مزید وقت دینے کی استدعا کر دی۔ اسی والے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جگت پورہ سے چک نمبر 131 مسجد چوک تک جڑاوالا ڈسٹرکٹ فیصل آباد کی سڑک کی تعمیر و مرمت کا کام روک دیا گیا ہے۔ سرکاری کانٹریکٹر کی جانب سے سڑک کی تعمیر و مرمت کے لیے مزید میعاد وقت کی مدت کے لیے محکمہ ہائی وے کو مراسلات بھیجا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ مقررہ وقت میں سڑک کی تعمیر و مرمت کا کام مکمل نہیں کر سکتی، جس کی بڑی وجہ سیاسی عدم و استحکام ہے۔ اور اسی والے سے محکمہ ہائی وے کے ایکسن کی جانب سے سرکاری کانٹریکٹرز کو ٹائم ایکسٹینشن کے حوالے سے آگاہی دی گئی ہے کہ جلد سے جلد وہ اپنی میعاد مدت کے حوالے سے ایکسن محکمہ ہائی وے کو بریف کرے۔ تاحال جڑاوالا میں یہ سڑک کی تعمیر و مرمت کا منصوبہ رک گیا ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکاری کانٹریکٹرز نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ سڑک کی تعمیر و مرمت کا کام روک دیا ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ایکسین روڈ کنسٹرکشن کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ واضح طور پر آگاہی دی گئی ہے کہ جگت پورہ سے چک 131 جڑاوالا ڈسٹرکٹ میں سڑک کی تعمیر و مرمت کا کام ہے وہ جلد سے جلد مکمل کیا جائے۔ اگر ہم سڑک کی بات کریں تو سڑک کی جو لمبائی ہے وہ 7.40 کلومیٹر تک ہے، اور یہ سڑک کی ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے وہ محکمہ ہائی وے کے سپرد ہے، لیکن تاحال سرکاری کنٹریکٹر کی جانب سے جڑاوالا میں یہ جو سڑک ہے کی تعمیر کا منصوبہ ہے مکمل نہ کیا جا سکا، جس کی وجہ سے شہری کو بہت شکریہ عمران اسلم، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ انجمن تاجران سرگودا روڈ کا جامعہ چشتیاں چوک پر احتجاج۔ مظاہرین کہتے ہیں سڑک کی تعمیر کا کام جلدی مکمل کیا جائے اور مٹی پتھر ہٹائے جائیں تاکہ بیماریوں سے پاک سانس لے سکیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ انجمن تاجران سرگودا روڈ کا جامعہ چشتیہ چوک پر احتجاج ہے۔ اسی والے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ وقاص بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی وقاص، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، سرگودا روڈ پر واسا کی جانب سے تعمیراتی کام جو ہے وہ تو جاری ہے، لیکن اس کے بعد جو پتھر اور مٹی کے ڈھیر سڑک پر موجود ہیں اس کے باعث تاجران جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں۔ خاص کر اگر بات کی جائے انجمن تاجران سرگودا روڈ کی تو تمام تر افراد جو ہیں دکاندار جو ہیں وہ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ مٹی اور دھول کے باعث جو ہے اپنی ہی دکانوں پر بیٹھنا، کاروبار کرنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے، اور موجودہ صورتحال میں گاہک بھی یہاں آنے سے کتراتے ہیں۔ مرزا داؤد ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں گے۔ مرزا صاحب، یہ بتائیے گا کہ سرگودا روڈ پر واسا کا کنسٹرکشن کام جاری ہے، مزید ٹائم اس میں لگ سکتا ہے، اس وقت کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے تاجر برادری کو جو یہاں روڈ پر موجود ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا 41 کا، وقاص بھائی آپ کا، جو آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اور ہماری مشکل کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جو آج کل یہ کام شروع ہوا ہے سرگودا روڈ پر واسا کا، یہ سلسلہ تو ابھی جاری ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کتنی دھول ہے، مٹی ہے، روڑے ہے، سب ادھر اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کوئی اس کا سالے نہیں کر رہا۔ ادھر انتظامیہ کا جو کام ہے، جو ہمارے تاجر بھائی ہیں وہ سب ابھی کام کاج کوئی نہیں ہے، ویسے ہی فارغ بیٹھے ہیں۔ تو یہ حکومت کو چاہیے، اداروں کو چاہیے کہ سب کے ساتھ مل جل کے جلدی سے جلدی یہ کام ختم کریں، میں یہ کہوں گا محکمے سے۔ جی بالکل، جلدی سے جلدی کام ختم کیا جائے، اور کام ختم کرنے کے ساتھ ساتھ روڈ پر موجود پتھروں کے ڈھیر جو ہیں، مٹی کے ڈھیر جو ہیں، ان کو ہٹائے جائیں، ایسا مطالبہ ہے انجمن تاجران سرگودا روڈ کا، جن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک سڑک جو ہے وہ صاف نہیں کر دی جاتی نہ تو گاہک جو ہے وہ دکانوں کا رخ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں جو ہیں وہ بھی اس مٹی گھٹے کی وجہ سے مزید ان میں بھی اضافہ ہے۔ انجمن تاجران سرگودا روڈ کا جامعہ چشتیہ چوک پر احتجاج جاری ہے۔ بہت شکریہ وقاص بیگ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیکسنگ میں کل رات سے بدھ تک طوفانی بارشوں کی پیش گوئی ہے۔ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے نے فیصل آباد سمیت صوبے بھر کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا ہے اور شہریوں کو جانی و مالی نقصان سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔
फैसलाबाद और टोबा टेकसिंग में कल रात से बुध तक तूफानी बारिशों की पेशन गोई। अलर्ट जारी। पीडीएमए ने फैसलाबाद समेत सूबा भर में डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को जानी माली नुकसान से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर के लिए इकदाम करने की हिदायत जारी है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद और टोबा टेकसिंग में कल रात से बुध तक तूफानी बारिशों की पेशगोई जारी कर दी गई है और कमिश्नर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी है हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक फैसलाबाद में सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और हाई अलर्ट के मुताबिक शहरियों को जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर के लिए इकदाम उठाने की जो है वो इकदाम भी जारी करने की बात की गई है। जैसे टोबा टेकसिंग फैसलाबाद में कल रात से तूफानी बारिशों का सिलसिला है। इस इस्लाम में जो है वो बारिश के साथ साथ जो है वो थंडर की भी जो है वो इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, जिसमें टोबा और फैसलाबाद, गोजरा और इसके मुल्का इलाकों में जो है वो बारिश के साथ साथ जो है वो थंडर की भी जो पेशगोई की गई है। उसके साथ साथ तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, वो अपने अपने इलाकों में जो है वो जल्द से जल्द जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो करें ताकि बारिश से निपटने के हवाले से जो है वो एहतियाती तदाबीर से जो बचा जा सके। और इसी इस्लाम में कमिश्नर डिजास्टर मैनेजमेंट ने फैसलाबाद समेत सूबा भर के लोकल गवर्नमेंट और इरीगेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को बातें जारी कर दी हैं, जिसके तहत वो तमाम लैंड ज़रूरी अराजी के हवाले से जो है वो फसलों की बचाव के हवाले से भी है वो इकदाम उठाने की जो है वो एहतमाम जारी किए गए हैं। और ये जो कल रात से शुरू होगा सिलसिला, ये बुध तक जाने का इम्कानात है। जी शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग इंतजामिया की नाअहली रमजान बाजार शहरियों की तवज्जो हासिल न कर सके। आटे और चीनी के खरीदार सब्सिडी में कमी के बायस परचून मार्केट से खरीदारी करने को तरजीह देने लगे। ये रिपोर्ट देखें। जंग के रमजान बाजार शहरियों की तवज्जो हासिल न कर सके। आटे और चीनी के खरीदार सब्सिडी में कमी के बायस परचून मार्केट से खरीदारी करने को तरजीह देने लगे, जबकि खरीदारों का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए भी कोई इंतजामात मुमकिन न किए जा सके। बाजार से और इसमें रमजान बाजार से तकरीबन 8 से 10 रुपए का फर्क है सर। अब जो आदमी 4 किलोमीटर से दूर से आएगा 50 रुपए रक्षा खर्च के, वो कैसे रमजान बाजार में खरीदारी करेगा? इसलिए वो रमजान बाजार में आने का रुझान ही नहीं है। फिर दूसरी चीज़ें ये है कि इंतजामिया जो है बेहतर तरीके से कोई ऐसी चीज़ें नहीं ला सकी। शहरियों का कहना था कि रमजान बाजारों में गैर मारूफ कंपनियों के स्टॉल्स मौजूद हैं, जिसके बायस घी शरबत की खरीदारी भी कमी का शिकार है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि जिला इंतजामिया सब्सिडी की शरह में इजाफा करे और क्वालिटी अशिया की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद के एहसास कफालत सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। जिला के 9 मराकज़ से इमदादी रकूम की तकसीम रोक दी गई है। खवातीन को इमदादी रकम अब दुकानों से मिलेगी। टाउट माफिया भी जेबों पर डाके डालने के लिए मुतहर्रिक हो गया। देखिए मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में। नई हुकूमत के क़याम के साथ ही गरीब को इमदाद देने वाले एहसास कफालत सेंटर्स बंद कर दिए गए। एहसास कफालत सेंटर ने रकूम की तकसीम रोक दी है। फैसलाबाद के 3 सेंटर्स को ताले लग गए। जिला के मजमूई तौर पर 9 एहसास कफालत सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। खवातीन इमदाद के असूल में मारी मारी फिरने लगी। गवर्नमेंट नहीं कहेंगे गरीब बंदे हैं नहीं देने तो जवाब ही दे देना सी, जो किराया ला के किसी को फड़ के आने हैं फिर वापस चल जाते हैं। तीसरा चौथा महीना हो गया सानू, इन्होंने सलीमी चौंक लाता, इत्थों फिर सानू उत्थे गए, उत्थे उन्होंने कहलाता इत्थे जाओ, इत्थे भी सानू कुछ नहीं दिता ना। बंद होने वाले मराकज पर कोई रहनुमाई करने वाला भी मौजूद नहीं है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंतजामिया के मुताबिक इमदादी रकूम की तकसीम रिटेलर्स के पास मुंतकिल होंगी। एहसास प्रोग्राम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली खवातीन मुस्तफीद होंगी। एहसास प्रोग्राम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाली खवातीन मुस्तफीद होंगी। खवातीन का कहना है कि सरकार और रिटेलर्स ने शटल काक बना दिया है। 3 महीने हो गए हूँ इतने आਉਂਦੇ सलीमी चौंक जाओ, कदी गल्ला मंडी जाओ, कदी किते जाओ, उधरों फिर के ना ते असी अज फिर सानू इधर आना पिया। ਤੇ ਜੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਕਾਟ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ करके तो कहते हैं नहीं पैसे। दूसरी जानब बंद होने वाले एहसास कफालत सेंटर्स पर टाउट माफिया मुतहरक है। 100 रुपए बटोर कर बेसूद सी पर्चियां काट कर दे रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फेस्को रीजन के 28 सरकारी महकमे 1 अरब 27 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा निकले। वासा, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, आबपाशी और महकमा जेल खाना जात भी नादहिंदगान में शामिल हैं। फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन के सरकारी महकमों के 28 नादहिंदा सरकारी महकमों से वाजिबात की वसूली के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
फैसला आबाद और सरगोदा डिवीजन के 28 नादहिंदा सरकारी महकमों से वाजिबात की वसूली के लिए हतमी नोटिस जारी कर दिए गए। जीएम ऑपरेशन इतरत हुसैन ने रिकवरी के लिए टीमें तश्कील दे दी। इनका कहना है कि वाजिबात अदा न करने वाले महकमों की बिजली काट दी जाएगी। वासा फैसलाबाद 73 करोड़ 32 लाख, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग 9 करोड़ 76 लाख, महकमा आबाशी 4 करोड़ रुपए के नादहिंदा महकमों में शामिल है। पंजाब पुलिस 2.25 करोड़, महकमा जेल खाना जहाँ 2 करोड़ 11 लाख के नादहिंदा है। टीएमए मदीना टाउन 3.5 करोड़, लायरकोट टाउन 1 करोड़ 42 लाख रुपए, इकबाल टाउन 60 लाख, जिनाह टाउन 47 लाख रुपए और टीएमए समुद्री 54 लाख के नादहिंदा निकले। सिविल अस्पताल फैसलाबाद 1 करोड़ 91 लाख रुपए, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट 1 करोड़ 27 लाख, नेशनल हाईवे अथॉरिटी 62 लाख, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 88 लाख, पंजाब लाइफ स्टॉक 73 लाख के नादहिंदा निकले हैं। जंग हेल्थ डिपार्टमेंट 81 लाख, टीएमए जंग 32 लाख, टीएमए कन्यूट 78 लाख और टीएमए गोजरा 66 लाख रुपए से जायद के नादहिंदा हैं। इसके अलावा सरगोदा डिवीजन के इजला के मुख्तलिफ महकमे भी फेस्को के नादहिंदगान में शामिल हैं। बिजली की लोड शेडिंग सहर और रफ्तार के इस औकात में ना की जाए, नेपरा ने फेस्को को वाज़ेह हदायत जारी कर दी। सहर और रफ्तार में लोड शेडिंग पर कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग सहर और रफ्तार के औकात में ना की जाए। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। आज ही बिल्कुल लोड शेडिंग पर नेपरा की जानिब से जो है वो एक्शन लिया गया है और फेस्को को खसूसी तौर पर नेपरा की जानिब से हदायत जारी की गई हैं कि बिलखसूस जो है वो लोड शेडिंग ना की जाए और सहर और रफ्तार के औकात में बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। गुज़िश्ता 2 हफ्ते में फेस्को की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर फैसलाबाद के शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे और देहाती इलाकों में 6 से 7 घंटे जो है वो बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना है, मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। अब जो है वो नेपरा की जानिब से इसका बाकायदा तौर पर नोटिस भी लिया गया है और फेस्को को हदायत की गई हैं कि बिजली बहरान की वजह से अगर लोड शेडिंग करना भी है तो बिलखसूस सहर और रफ्तार के औकात में लोड शेडिंग बिजली की लोड शेडिंग सहर और इफ्तार के औकात में ना की जाए। बहुत शुक्रिया अवैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त तालीम की सहूलत महदूद करने का प्लान है। पेप पार्टनर स्कूल में नए दाखिले होने वाले तलबा से फीस भी वसूल की जा सकेगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने महदूद फंडिंग के पेश नज़र मजीद तलबा के दाखिलों से रोक दिया था। एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, लेकिन अक्सर स्कूल्स को फंड्स महदूद होने के बायस मजीद बच्चों को स्कूल दाखिल करने से रोक दिया जाता है। अब पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूलों को फीस के साथ बच्चे दाखिल करने का ऑप्शन देने पर मंसूबा बंदी शुरू कर दी है। पार्टनर स्कूलों को नॉन पेफ तलबा के मौजू पर एक मुरासला भिजवाया गया है, जिसमें तजवीज़ दी गई है कि पेफ पार्टनर स्कूलों में बच्चों की मखसूस तादाद के बाद नए तलबा से फीस भी वसूल की जा सकेगी। पार्टनर स्कूलों में नॉन पेफ तलबा के दाखिलों से मुतालिक स्कूल मालिकान से राय भी मांगी गई है। पार्टनर स्कूलों के मालिकान की राय के बाद नॉन पेफ तलबा पॉलिसी जारी की जाएगी और फिर पेफ पार्टनर स्कूलों में फंड्स खत्म होने पर नए दाखिल होने वाले बच्चों से स्कूल फीस वसूल की जाएगी। स्टील की मसनूआत पर सेल्स टैक्स लागू करने का मामला। FBR ने स्टील मिल की मुख्तलिफ मसनूआत की कीमत फिक्स कर दी। वैल्यू 1,25,000 रुपए से 1,64,000 रुपए फी मैट्रिक टन मुकर्रर की गई है। स्टील की मसनूआत पर सेल्स टैक्स लागू करने का मामला। FBR ने स्टील की मुख्तलिफ मसनूआत की कीमत फिक्स कर दी। वैल्यू 1,25,000 रुपए से 1,64,000 रुपए फी मैट्रिक टन मुकर्रर की गई। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि स्टील मिल की मसनूआत पर सेल्स टैक्स लागू करने का मामला है। FBR ने स्टील मिल की मुख्तलिफ मसनूआत की कीमत फिक्स कर दी है। वैल्यू 1,25,000 रुपए से 1,64,000 रुपए फी मैट्रिक टन मुकर्रर की गई है। स्टील के मसनूआत पर सेल्स टैक्स लागू करने का मामला। FBR ने स्टील की मुख्तलिफ मसनूआत की कीमत फिक्स कर दी। वैल्यू 1,25,000 से 1,64,000 रुपए फी मैट्रिक टन मुकर्रर की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुकामी सतह पर तैयार होने वाली जो स्टील की मसनूआत हैं उनकी कीमत मुकर्रर वैल्यू मुकर्रर की जाती है और इस हवाले से फिर उस वैल्यू पर जो सेल टैक्स और दीगर टैक्सेस हैं उनका निफाज किया जाता है और जो मुकामी सतह पर किसी भी फैक्ट्री की सतह पर तैयार होने वाली कीमत जो होती है, तो इस हवाले से FBR की जानिब से इससे कबल नवंबर में भी कीमतें मुकर्रर की गई थी और अब एक बार फिर उन कीमतों में रद्दोबदल की गई है और पर मैट्रिक टन जो है वो 1,25,000 रुपए से लेकर 1,64,000 रुपए फी मैट्रिक टन तक कीमतें मुकर्रर की गई हैं और अब इस कीमत पर जो भी सेल्स टैक्स लगेगा वो इस कीमत पर लगेगा। दीगर टैक्सेस जो है
ان का लिकपाज भी इसी कीमत पर होगा और ये कीमतों पर इतलाक जो है ये मुकामी सतह पर जो तैयार होने वाली पाकिस्तान में तैयार होने वाली मसनूआत है उन पर लागू होगा। इस हवाले से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद झुमरा रोड निगहबानपुरा फाटक से निशाताबाद पुल तक टूट फूट का शिकार है। रोड की तामीर मुरम्मत न होने की वजह से रिक्शा ड्राइवर्स परेशान हैं। उनका कहना है एक तो आए रोज हादसा होते रहते हैं और दूसरी तरफ रिक्शों का नुकसान होता है। इफ्तारी के औकात में यहाँ से गुजरना नामुमकिन होता है। मजीद जानते हैं हाशिर वड़ाइश से। जी हाशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जुमरा जो रोड है वो मेन रोड निगहबानपुरा फाटे से लेकर निशाताबाद पुल तक जो है वो गुज़िश्ता 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। रोड टूटा होने की वजह से एक तो यहाँ पर जो एक्सीडेंट है वो भी मामूल बन चुके हैं, इसके साथ अफ्तारी के औकात में यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम है वो भी मामूल बन चुकी है। कोई रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तो भाईजान आप बताइएगा, आप इस रोड पर रिक्शा चलाते हैं, रोजाना इसी रोड से गुजरते हैं, तो किन मुश्किलात का सामना होता है रोड टूटने की वजह से? भाई रोड के कोई हालात नहीं है, रोड का बेड़ा गर्क हुआ पिया है इस वक्त, जो कि अवाम भी बहुत परेशान है रोड की वजह से। रोजाना कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है और चोट वगैरह लग जाती है। और अफ्तारी के वक्त इधर कोई समझ लो कि अफ्तारी के वक्त इधर कोई हाल नहीं होता है, इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है कि समझ लो कि बेड़ा गर्क हुआ पिया है रोड का, अवाम बहुत परेशान हुई। आप क्या कहेंगे इस पे? भाईजान ये जबकि ये हालात हुए हैं ना, ये जब से रोड टूटा हुआ है कोई ना कोई एक्सीडेंट रोजाना होता है। आगे तो हुकूमत थी तो कुछ हो जाएगा, अभी तो कुछ पता नहीं है, हुकूमत भी चेंज हो गई है। अभी शाम अफ्तारी का टाइम होता है तो ट्रैफिक इतनी जाम हो जाती है, अफ्तारी भी बाहर करनी पड़ती है। हमें इंतजामिया या यहाँ के मुंतखब जो MNA या MP हैं वो क्या कहते हैं? कोई बंदा नहीं इस वक्त बात सुन रहा, हम लोग बहुत परेशान है यार, हमारा दिल करता है हम घर। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि ये जो रोड है ये अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जाने से भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया जा रहा और ये रोड इसी तरह टूट फूट का शिकार है। जी शुक्रिया हाशिर वड़ाइश, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन फेडमिक ने भी हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक फेडमिक की तरक्की के लिए भरपूर काम करने, फेडमिक के बाय लॉज के मुताबिक तरक्याती कामों को जारी रखने की अज़म का इजहार। आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन फेडमिक ने भी हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक फेडमिक के तरक्की के लिए भरपूर काम करने, फेडमिक के बालाबाई के मुताबिक तरक्याती कामों को जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो तब्दील हो चुकी है। PTI की गवर्नमेंट के बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो फेडमिक जो कि पाकिस्तान का एक शाहकार है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्रियल जोन जो है वो बनाया गया, जिसमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो भी तेज़ी से आ रही हैं। क्या हुकूमत चेंज होने के बाद फेडमिक की कोई पॉलिसीज़ जो हैं उनमें भी चेंजिंग आएगी? हुकूमत अपने तरीक़ाकार से क्या इसमें कोई चेंजिंग लाएगी या फिर कोई इसमें इन्वेस्टमेंट में, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ेगा? ज़फ़र सरवर जो कि चेयरमैन हैं फेडमिक के, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सर, बताइएगा, हुकूमत चेंज होने से क्या कोई फेडमिक के अंदर भी तब्दीलियाँ आएंगी? क्या देखते हैं फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और ज़्यादा आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फेडमिक के अंदर आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि फेडमिक जो है वो बेसिकली पॉलिटिकल फोरम नहीं है, ये एक बिज़नेस कम्युनिटी है और बिज़नेस के अंदर जो है सबके इंटरेस्ट सेम होते हैं और ये एक नॉन पॉलिटिकल फोरम है। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली ऑन जो इन लाइन हैं और भी आएंगी, और अगर कोई पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चेंज करती है तो अल्टीमेटली हम उनके ऑटोनमस बॉडी हैं तो हमें उनको फॉलो करना पड़ेगा। फेडमिक के अपने बाई लॉज हैं, इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है, तो बाई लॉज को हम हमेशा जो उसको फॉलो करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई तब्दीली आने वाली है, ऐसी कोई चेंज आएगी। तो अगर कोई चेंज आती भी है तो हम उसको फॉलो करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट और जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, इन दोनों की एक रजीम तो है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए, रिमिटेंस आए और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। जी बिल्कुल, हुकूमत कोई भी हो लेकिन मुल्क के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए हर गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि वो मेहनत करें, और कोई भी अगर हुकूमत जो है वो चेंजिंग लाती है किसी भी पॉलिसी में तो उसको फेडमिक की जानिब से फॉलो किया जाएगा। और अपने बायलाज हैं फेडमिक के, जिनको फॉलो करते हुए फेडमिक के अंदर काम जो है वो बेहतर से बेहतर किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान की मईशत। चेयरमैन फेडमिक ने भी हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि फैसलाबाद पंजाब और मरकज़ में PTI की हुकूमत तब्दील, मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ गई।
बल्दियाती नुमाइंदगान ने उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कहते हैं कि उम्मीद है कि ग्रास रूट लेवल के मसाइल भी हल होंगे। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर पंजाब और मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें दोनों जगह पर ख़त्म हो गई हैं, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बल्दियाती नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेंगे लोकल बॉडीज़ पे, आम शहरियों पर, लोगों को क्या उम्मीदें मुबस्ता हैं, ये सब आगाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो साबका हिस्ट्री तो यही है कि कोई भी जो जमहूरी हुकूमत आई है उसने बल्दियाती जो नुमाइंदगान है उनको तस्लीम नहीं किया, और ना उनको जो आइन में दिए गए इख्तियारात हैं वो दिए हैं, ना और बल्दियाती उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं, और ना को बल्दियाती अदारों को इतना बाइख्तियार किया है। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन भी आज़ाद है और सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है, जिस तरह KPK में वहाँ की हुकूमत के ना चाहने के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन करवाए गए हैं, और बलूचिस्तान में भी इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, हाई कोर्ट ने उनकी अपील रिजेक्ट कर दी है। अब पंजाब में भी जो बल्दियाती नया एक्ट बनाया गया था उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 16 ज़िला में बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। तो उम्मीद ये की जाती है कि इलेक्शन हुकूमत की तब्दीली की वजह से थोड़े डिले ज़रूर हो जाएंगे, या उसमें कुछ कानून में तरमीम ज़रूर ये हुकूमत कर देगी, लेकिन आफ्टर ऑल इनको 2-3 महीनों के अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरत भी है, चूँकि आवाम को जो बुनियादी सहूलियात है। शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि FBR ने सेल्स टैक्स की जाली रसीदें देने वाले शॉपिंग पॉइंट्स के गिर्द शिकंजा कस लिया है। एक हफ्ते के दौरान 5 जाली रसीदें देने पर पकड़ होगी। शॉपिंग स्टोर, बेकरी, डिपार्टमेंटल या चेन स्टोर को सील करने का इंदिया दे दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ऐसे वो तमाम डिपार्टमेंटल चेन स्टोर या बेकरियां जो कि सेल्स टैक्स के तस्दीकी सिस्टम POS में रजिस्टर्ड है, मगर वो ख़रीदारों को सेल्स टैक्स की जाली रसीद जारी करते हैं, तो उनके गिर्द अभी शिकंजा तैयार किया जा रहा है। और इस हवाले से ऐसे वो तमाम दुकानदार जो कि सेल्स टैक्स की जाली रसीद देंगे तो उनके खिलाफ FBR बड़ी कार्रवाई करेगा और उन स्टोर्स को सील कर दिया जाएगा। एक महीने में अगर कोई भी, एक हफ्ते में अगर कोई भी दुकानदार जो है वो ग्राहकों को 5 जाली रसीदें जारी करेगा, यानी कि ऐसी वो तमाम रसीदें जिन पर बार कोड की वेरिफिकेशन नहीं होगी तो वो जाली तस्वर की जाएगी, और 5 जाली रसीदें देने पर स्टोर जो है वो सील कर दिया जाएगा। और इसका इख्तियार जो है वो चीफ कमिश्नर के पास होगा। इस हवाले से जो कमिश्नर हो, मुतल्लिका जोन का कमिश्नर है, वो चीफ कमिश्नर से इजाज़त लेगा और फिर उसके बाद जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से शहरियों की शिकायत सामने आ रही थी कि मुख्तलिफ ऐसे शहर में चेन स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फिर बेकरियां और ब्रांड स्टोर ऐसे हैं जहां से वो ख़रीदारी करते हैं, और इसके इवज़ में जो उनको पक्की रसीद दी जाती है तो इस रसीद पर जो मौजूद बारकोड होता है वो जाली होता है, यानी कि रसीद जो है वो जाली दी जाती है, और उनका जो अदाशुदा सेल्स टैक्स है उसकी इस बात की तस्दीक नहीं हो सकती कि आया कि वो अदाशुदा सेल्स टैक्स कौमी खजाने में गया है या नहीं गया। शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें आगाह कर रहे थे। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से कपास की गैर तस्दीक शुदा बीजों की रोकथाम के लिए पॉलिसी तश्कील। कपास के नाकिस और गैर तस्दीक शुदा बीजों की दुकानों पर फरोख्त को रोका जाएगा। किसी भी दुकान पर गैर तस्दीक शुदा और खुले बीजों के खिलाफ फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा सकेंगी। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस खान, अपडेट कीजिएगा। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से कपास के गैर तस्दीक शुदा बीजों की रोकथाम के हवाले से इकदाम का अमल शुरू कर दिया गया है। महकमा ज़राअत की जानिब से खुले और गैर तस्दीक शुदा जो बीजों की फ़रोख्त का अमल रोकने के हवाले से जो है वो पॉलिसी तश्कील दी गई है, जिसके मुताबिक जो है वो ऐसे दुकानदार जो गैर तस्दीक शुदा बीज जो हैं वो फ़रोख्त करने में मुलव्वस पाए कि उनके खिलाफ जो है वो फेडरल सीड कॉर्पोरेशन की जानिब से इकदाम अमल में लाए जाएंगे। महकमा ज़राअत के मुताबिक कपास के 70 इकसाम के जो बीज हैं उनको जो सर्टिफाइड किया गया है हुकूमत की जानिब से, उनकी मार्केट में फ़रोख्त का अमल भी जारी है। तहम रवां साल जो है महकमा ज़राअत की जानिब से 3 जन जो है वो बीजों की फ़रोख्त का अमल भी जो शुरू किया गया है, जो बीमारियों के खिलाफ मज़ामत रखती है। इस महकमा ज़राअत के मुताबिक। जी बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।